Dear students, today we are going to study class 6 social science, geography, the earth, our habitat, chapter number 2, globe, latitudes and longitudes. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 6 सोशल साइंस ज्योग्राफी के चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में अध्ययन करेंगे. As you read in the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south poles and worlds in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at the globe carefully from this picture. Globe is a true model of the earth. पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है. यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखाई देती होगी? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है. ग्लोब्स may be of varying size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. It is can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. On the globe, countries, continents, and oceans are shown in their correct size. ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं. बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते. पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है. ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं. इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है. ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. Now the question rises,
as to how to locate a place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में की आवश्यकता होती है। You will notice that a needle is fixed through the globe in a titled manner, which is called its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east, just as the north moves. But remember, there is a major differences. The real Earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere, and the southern half is known as the southern hemisphere. They are both equal always. Therefore, the equator is an imaginary circular line, and it is a very important reference point to locate places on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. Latitudes are measured in degrees. एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के
उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश यानी समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। The equator represent the 0 degree latitude, since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth. It will measure to 360 degrees, 90 degrees, thus 90 degrees north latitude marks the North Pole and 90 degrees south latitude marks the South Pole. विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। इसका माप होगा 360 अंश, 360 अंश यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अक्षांश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। As such, all parallels north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes. इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by the letter N or S. For example, both Chandrapur in Maharashtra and Velu Horizon in Brazil, South America, are located on parallels of about 20-degree latitude. What the former is 20 degrees north of the equator and the latter is 20 degrees south of it. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degrees north latitude and Velo Horizon is situated at 20 degrees latitude. We see in the diagram
that as we move away from the equator, the size of the equator parallel of latitude decreases. इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या दा यानी उत्तर और दक्षिणी अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में वेलो हॉरिजॉन्ट दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अक्षांश उत्तर में एवं एलो हॉरिजॉन्ट विषुवत वृत्त के 20 अक्षांश दक्षिण में उपस्थित हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा वेलो हॉरिजॉन्ट 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं। चित्र के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। Important parallels of latitude. Beside the equator 0 degree, the North Pole 90 degree north and the South Pole 90 degree south, there are 4 important parallels of latitudes. महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समांतर रेखाएं विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश देशांतर रेखाएं भी हैं। ये रेखाएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 degree north in the northern hemisphere. Second, tropic of Capricorn 23 south in the southern hemisphere. Third, Arctic Circle at 66 north of the equator. Fourth, Antarctic Circle at 66 south of the equator. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिणी, विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त हैं।